So in yesterday's lecture, we were at this point that we started the binary to decimal conversion, and we have already done few calculations also. We saw this table in detail, and we saw that how this binary number can be converted into decimal number. If you have any doubt in the yesterday's lecture, you can ask it right now because few of the students are still joining. So we have 2-3 minutes. We can discuss those doubts, and then I will continue that what's next. Hanji, any doubt in yesterday's lecture, you can ask now. So in case you people have no doubt in yesterday's lecture, I will move on to the next slide. But before that, we were discussing, we were also looking into this thing that how to convert a decimal number into binary. That was the last thing that we covered in the yesterday's class. So we were solving this thing that if I want to convert 11, which is a decimal number, and I want to convert it into a base 2, I can simply divide it by 2 again and again and write down the quotients and remainder. So 11 by 2 quotient will be 5, remainder 1. 5 by 2 quotient 2, remainder 1. 2 by 2 quotient 1, remainder 0. Similarly 1 by 2 quotient 0, remainder 1. And moving from down to up, we could see that the output was 1011, ignoring this 0 because it will not make any sense. So 1011 is actually the binary equivalent of 11 from decimal. So I hope that you people not have do not have any kind of doubt in this case. And I also want to discuss one more thing. Let's say we have this thing 0.5 in base 10. So what will it be in base 2? How will we find this? Can anyone tell quickly? How do we calculate the binary equivalent of this decimal number, which is 0.5? Someone has written the output as 1. Is it the correct? 0.1. 0.1. 0.1. Yes, the output is 0. It has to be 0.1 or maybe 0.1. You can also say that. And how we can get this is because, I mean, there is a process. So we will follow that process. Let's say we start with 0.5. Now, if I multiply it by 2. So earlier, what we were doing was if I wanted to convert, let's say 12, which was a decimal number, into binary, I was dividing by 2 every time and writing the quotients and remainder. So this time, because it's about the points, so what we will do is we will uh, multiply it by 2 instead of dividing by 2. So multiplying it by 2, we will get 1.0. So in this case, only the decimal point has to be written. It has to be like this, and then this 1, in fact, this 0 can be ignored. This 1 will be my output. And obviously, because we are converting it for the point side, I mean, we are working on the right hand side. So the answer will start with point, and this whatever number we get here, we will keep putting here. So now if I want to do the same thing for, let's say, 0.75. So how this can be solved? Let's solve it for 0.75. It will be more clear. So if I solve it for 0.75, multiply it by 2, I will get 1.50. So I will keep this one as part of my answer. So it should start from point. So the answer will be 0.1 for sure. And then we will look into the next part. Next part will be uh, calculated using this point part. So whatever came after the point, so we will take that number 0.50, multiply 1 again into 2, and multiplying it by 2, we are getting 1.0. So now, because even if you multiply 0 multiply by 2, it will be 0 only. So we will stop at this point. When we are getting after 0.0, we will stop at this point and we will shift this 1 into our answer at second place. So 0.11 is the decimal equivalent of 0.75 in decimal. If you have any doubt in this question or this technique, you can ask it right now, that how will I do it for 0.75? सबको clear हो जाना चाहिए. And if you have got this,
if you have understood that how am I converting 0.75 with base 10 into 0.11 into base 2, so मुझे ये मिल गया इसका equivalent. Can anyone solve it for 0.875? What will be the equivalent decimal binary equivalent of this decimal number? Can anyone tell me what will be the answer here with the base 2 for 0.875? Quickly solve and tell. Sir, 0.111. 0.111. हाँ जी, if you have any doubt, किसी का अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो you can ask. It should be this answer only. For a simple reason, if you multiply 0.875 by 2, what will you get? Anyone? 1.75. 1.750, right? Yes. So we can Yes. shift the first one at this place after the first place. Now we will do it for 0.75 and multiplying it by 2. The process will be what we did on the right hand side. So 0.11 will be again added. So the next two ones will make up for this thing. So if you follow the process, I will do it quickly, fully. अगर मुझे 0.875 का करना है, I will multiply it by 2. I will get 1.75. Shifting this one into the answer, it will be 0.1 for now. But then I have to continue with 0.75, multiplying it by 2, I will get 1.5. Again, I will have to shift this one here at the second place. ठीक है? So this is the second place. उसके बाद 0.5 का I will continue. I will stop at this point because now after point मेरे पास 0 है तो मैं multiply by 2 करूंगा भी तो कुछ आएगा नहीं. But I will have to put this one, the final one, at the third place. इसलिए I am getting 0.875 का binary equivalent as 0.111. Is it clear to everyone? If it is clear, we will move to the next slide now. Now we have to discuss that how will we represent the negative numbers. So someone is asking one question to me, sir, if you want to convert a negative number, then what's the procedure? So we have come to this. So now I want to convert negative number into binary. So this is how we will do. Look at this carefully now. So the process says that for getting a negative binary number, let's say I want to present -1, which is a decimal number, into its equivalent binary. क्वेश्चन ये है that we have to convert a decimal number जो कि एक नेगेटिव नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे प्रेजेंट करेंगे. द फॉर्मूला इज दैट यू हैव टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है जी. अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? someone is asking that what will be the process. वो पिछली स्लाइड में से है. they are saying that how will I process for this. Let's say my question is 0.0001 base 10. Was this were you asking? So this is a decimal number or a binary number? Which one were you asking? Bikash Kumar, you asked in chat. It's a decimal number. It's a decimal number. So you will have to continue it multiplying it by 2. अगर 0.001 को मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 0.002 आएगा. तो ये वाला तो 0 आएगा ही, मतलब 0.0 से स्टार्ट करेंगे, ये वाला फर्स्ट 0. ठीक है. फिर 0.002 को मल्टीप्लाई 2 करोगे 0.004 आएगा एंड इवेंचुअली यू विल रीच 1. तो फिर वो 0.0000 ऐसे कुछ करके एंड में जाके यहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. The process will be same, right, sir? What? The process will be same, right? Yes, process will be same. Yes. Thank you, sir. So now coming to this, let's say I want to convert -1, which is of base 10. ठीक है. ये डेकेड नंबर लिखा है, इसका मतलब बेस 10 है, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे. एंड नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, आई विल लुक इनटू दिस थिंग कि ये 1111 आया कैसे. प्रोसेस सेज दैट आई हैव टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट. एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला देख लो. इट विल बी वेरी सिंपल अगर आपको ये समझ में आ गया एक बार में. टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है यू हैव टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट. आफ्टर फाइंडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट यू विल हैव टू ऐड 1. So 1's complement plus 1 is the formula of 2's complement. Similarly, if someone says you have to find maybe 6's complement,
This is not in your syllabus, but the concept should be same. So I'm telling you so that you can correlate and understand better. 6th complement अगर किसी ने बोला आपको निकालना है तो it will be 5th complement plus 1. ठीक है. Similarly अगर 8th complement निकालना है then the answer will be 7th complement plus 1. तो आइडिया समझ में आ गया सबको that we have to find n minus 1 का complement and plus 1. So this is the way to find n's complement in case your n is positive even number. ठीक है. So now coming to this कि यार ये 1's complement निकालना तो है पर ये 1's complement होता क्या है. 2's complement का मैंने फॉर्मूला बताया that you have to find 1's complement plus 1. So now I will focus on how to find 1's complement. Finding 1's complement means that whatever the number is, let's say मुझे -1 का निकालना था ना, तो हम -1 का एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द पॉजिटिव नंबर डेसिमल का कि मेरा 1 अगर मेरा +1 है तो वो मेरा बाइनरी में कैसे लिखेंगे. आई विल राइट +1 एज दिस नंबर. yes or no. in base 2 0001 is equivalent to 1 base 10. ये सबको पता है. Now 1's complement का मतलब है that I have to subtract this 0001. I have to subtract this out of 1111. This is the formula that when we are saying that I have to find 1's complement, जब भी हम odd number का complement निकाल रहे हैं, 1's complement का मतलब है 1's complement of a number means that you have to subtract that particular number from 1111. जितना भी उसका लेंथ है, सपोज उसका 4 डिजिट का था तो 0001 था, तो उसका उतना ही ऊपर 1111 लिखोगे और माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1110 आएगा. Similarly, if you have to find 3's complement, अगर किसी ने आपको बोला that you have to find 3's complement, 3's complement में thing will be same. You have to subtract the number whatever the number is from 3333. So जितना भी आपका complement है odd के केस में, right now I'm talking about odd's complement number. तो अगर odd complement number निकालना है तो you will have to put the numerator as that particular number. अगर 1's complement है तो 1111 आएगा numerator में. अगर 3's complement है तो 333 आएगा ऊपर numerator में, ऊपर वाला जो first part है. So that's how the basic is. So now I will get you the answer. उसके बाद ही मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा. तो एक बेसिक्स आइडिया देना था कि 1's complement कैसे निकालते हैं. Now let's say I start with 0001 which is a positive 1. I find a 1's complement and 1's complement can be found by two ways. या तो मैं 1111 से माइनस कर दूंगा इसको तो मेरा वो 1110 आ जाएगा. This is one of the method. This is the actual method. शॉर्टकट इज दैट अगर आपके पास 0001 है तो आप हर बिट को फ्लिप कर दो, हर बिट को उल्टा कर दो तो 0 का 1 बन जाएगा और 1 का 0 बन जाएगा, तो भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा था. एंड दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, फ्लिप जीरोस एंड वंस. फ्लिप जीरोस एंड वंस का मतलब है कि हम 1's complement निकाल रहे हैं. इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि 1's complement निकालने के लिए हमें फ्लिप करना है बिट को. यस सर. उसके बाद आई हैव टू ऐड 1. तो मेरा जो 1110 आया है दिस इज माय पॉजिटिव 1 का 1's complement. बहुत ध्यान से करने वाली चीज है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ओनली. अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो वो 1 कॉमन ना होता, बट आई स्टार्टेड विद +1 which was initially 0001. now I am finding the 1's complement which is actually 1110 क्योंकि मैंने सारे बिट फ्लिप कर दिए. and now I have to add 1. तो अगर add 1 करूंगा तो obviously 1111 आ जाएगा because 0 plus 1 is 1. बाकी सारे सेम है. now because I personally know that my process was to find the 2's complement. मैंने 0001 से शुरू करके I reached at this point of 1111. क्योंकि मुझे वो 2's complement वाला पूरा प्रोसेस करना पड़ा है, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ that this particular 1111 is actually equivalent to -1 in decimal. अब कोई मेरे को बोलेगा that सर 1111 तो 15 का भी होता था. अगर आप वो बेसिक बाइनरी टेबल देखो पीछे वाला, 1111 was actually equivalent of decimal number 15. ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1111 आखिरी में एंट्री थी. तो नाउ हाउ विल वी नो दैट 1111 जब भी आया कि वो मेरा +15 है कि -1 है? कैन एनीवन टेल मी दिस
कि हम ये कैसे बताएंगे? हाउ विल आई रिकॉग्नाइज दैट अगर मेरा यहाँ पे 1111 लिखा हुआ है ये -1 है या +15 है? अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि आउटपुट तो 1111 नहीं है। जल्दी बताओ, इफ एनीवन हैज एन आइडिया यू कैन टॉक नाउ। कुछ भी अगर आ रहा हो मन में बोलो। So there is a concept called signed and unsigned numbers. एक ये concept होता है signed numbers and unsigned numbers. अगर तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है that I am working with signed numbers. signed number का मतलब है कि या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो इस केस में मेरा 1111 will be -1. But if I am working with unsigned numbers, unsigned number के केस में 1111 will be equivalent to 15. अब ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है। जो मेरा ये बाइनरी नंबर है दिस इज -1 इन केस आई एम वर्किंग विद साइंड नंबर्स एंड दिस पर्टिकुलर सेम नंबर इज 15 इफ आई एम वर्किंग विद अनसाइंड नंबर्स। ये चीज याद रखनी है और अब मैं बताऊंगा साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है। ठीक है जी। अगर इसमें किसी को डाउट है अब तक कि हमने ये प्रोसेस कैसे निकाला कि -1 को मैं 1111 में लेके आऊं, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का पूरा प्रोसेस है। अगर किसी को ये डाउट है तो अभी पूछ लो और आई विल ऑल्सो सॉल्व वन मोर नंबर फॉर यू। लेट्स से मुझे -5 का निकालना है, तो -5 का नेगेटिव इक्विवेलेंट निकालने के लिए what I have to do is I will have to first write the number कि मेरा +5 क्या होता है। +5 मेरा होता है, can anyone tell what is the equivalent binary number for +5? 0101. 0101, very good. Now quickly doing the 2's complement. 2's complement कैसे निकालते हैं? I will do it quickly कि भाई पहले 0101 को 1's complement निकालो, मतलब 1010 and then +1 into this particular thing. ठीक है, +1 करेंगे तो वो बन जाएगा 1011 which is actually written here. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1011 ही लिखा हुआ है और ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, मतलब इतना सबको क्लियर होना चाहिए that if I have to, if I am told कि मेरे पास साइंड नंबर्स हैं और साइंड नंबर के बेसिस पे आई हैव टू फाइंड -5 का इक्विवेलेंट, यू विल हैव टू क्विकली डू दिस प्रोसेस व्हिच आई हैव डन ऑन दिस राइट हैंड साइड। देयर इज वन मोर शॉर्टकट टू दिस, मतलब ये वाला नंबर, अब वो इतना लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ रहा है कि हम पहले वो सबको फ्लिप कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर सपोज मुझे -5 निकालना है और आपने मेरे को बताया कि -5 का जो +5 होता है, इनफैक्ट +5 मेरा होता है 0101, तो शॉर्टकट ये कहता है कि सबसे पहले 1 को एज इट इज लिख लो, बाद वाले सारे फ्लिप कर दो, ये मेरा आउटपुट दे देगा। एक और आइडिया देता हूँ, एक और डिस्कस करते हैं। लेट्स से लेट मी टॉक अबाउट -6। अगर मुझे -6 का निकालना है, वो तो सब निकाल लेंगे कि मेरा जो 6 होता है इट इज इक्वल टू 0110, यही होता है बाय डिफॉल्ट 0110। 1248 वाला याद होगा सबको। Yes, sir. तो 4 + 2 is 6, तो 0110 इज माई 0110 इज एक्चुअली माई 6, Plus 6 होता है। तो अब इसको मैं फटाफट से शॉर्टकट से सॉल्व करता हूँ। शॉर्टकट सेज कि मुझे जब सबसे पहला 1 मिलेगा वहां तक तो कॉपी पेस्ट कर दो एज इट इज, तो पहले वाला 0 एज इट इज आ गया, जो 1 है उसको भी एज इट इज डाल दिया बिकॉज ये फर्स्ट 1 था। उसके बाद वाले सारे हम उसको फ्लिप कर देंगे, सो वी कैन राइट इट एज 10 एंड यू विल सी दैट -6 इज इक्वल टू 1010 इन द टेबल। यहाँ पे देखो ये 1010 ही है। मैंने क्या किया, मैंने पहले 6 का लिखा इट इज 0110, फिर शॉर्टकट मारा कि यार मैं इधर से शुरू करूं राइट हैंड साइड से, देन आई विल गो एज इट इज टिल द फर्स्ट 1 अकर्स। पहले वाला जब भी 1 आया उसके बाद ही हम फ्लिप करना शुरू करेंगे, तो दिस विल बी 1010 व्हिच इज दिस नंबर। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड ए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। तो मैंने आपको टोटल 2 मेथड बताए हैं। फर्स्ट मेथड वाज that if I get this number I will have to do the 1's complement, फिर उसमें +1 करूंगा तो 1 1 मेरा 10 होता है इसमें, तो 1 कैरी आ जाएगा, तो 1010
ऐसे आ रहा था, विच वॉज दिस नंबर ओनली। बट देन इतना बड़ा प्रोसेस करने की बजाय कि मैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं फिर मैं उसमें +1 करूं, वी डिड द स्मार्ट वर्क कि हमने क्या किया, एज इट इज कॉपी किया जब तक मेरा फर्स्ट वन नहीं आता, उसके बाद वाले सारे फ्लिप कर दिए। आई होप ये क्लियर हो गया। एंड विद दिस सेम टेक्निक यू कैन सॉल्व इट फॉर लेट्स से -8। अब मुझे पता है मेरा +8 होता है 1000। -8 क्या होगा, -8 को अगर हम सॉल्व करेंगे विद द फर्स्ट मेथड, आई विल डू द फ्लिपिंग, तो दिस विल बी 0111, इसमें +1 करोगे तो 1110 आएगा, फिर से 1110 आएगा, फिर से 1110 आएगा। अरे इसके ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब जो मेरा +8 है या -8 है, चाहे वो साइंड है या अनसाइंड, वो 1000 ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सर आप ये +1 कैसे कर रहे हो, ये वाला बताना। अभी बता रहा हूँ। अब देखो 1 + 1 क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बताओ 1 + 1 क्या होता है? 2 तो नहीं 1 होता, 2 नहीं हो 10. सकता, 10 होता है, राइट? ये सबको क्लियर है कि 10 होता है, बिकॉज 10 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर का वेट इज 1, सेकंड नंबर का वेट इज 2, तो 2 × 1 + 1 × 0 = 2। अब 10 ही मेरा 2 है, ये सबको क्लियर है? यस ओके, सो नाउ यू कैन डू द एडिशन। लेट्स से मैं कह रहा था कि अगर मैंने ये नंबर दिया उसमें +1 किया, अब 1 1 मेरा 10 होगा, तो 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी आएगा, फिर से 1 1 10 होगा, फिर से 1 कैरी आएगा, फिर से 1 1 10 होगा, फिर से 1 कैरी आएगा। दिस इज द आंसर, यही हमने ऊपर किया था। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? Someone is asking that I should solve for -2। मैं फटाफट से -2 का करता हूँ। 2 कैसे लिखते हैं, 0 0 1 0 होता है। रूल सेज राइट साइड से शुरू करो, जब तक 1 नहीं आता वहां तक चलो, तो मैं 0 1 को एज इट इज लिखूंगा, बाकी दो पीछे वालों को फ्लिप कर दूंगा। 1110 इज माई आंसर। हाँ जी, क्लियर? सारे समझ में आ गए कैसे निकालने हैं हमने? So when will we use 3s and 5s complement? Not in your syllabus, but if it is asked, then the technique is same। वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे हम निकालते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे था, इफ आई वांट टू डू द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, आई वुड राइट 1 1 1 1 अबव इट एंड डू द माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 में से 0 गया 1, ऐसे करके आई कुड डू दिस। ये मेरा था वंस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। बट इफ यू आर टोल्ड टू solve 3's complement, actually this is I think part of your digital electronics। Some electronics people might want to learn this thing। अगर कोई electronics का बच्चा होगा तो उसके लिए ये helpful होगा, because digital electronics में थोड़ा सा advanced level पे they say that you are expected to solve all these kinds of complements। तो उसमें कुछ नहीं होगा, whatever the number is हम उसको 333 में से माइनस कर देंगे। लेट्स से मुझे 0010 का ही निकालना था 3's complement, तो मैं 3 - 0 3 करूंगा, 3 - 1 2 करूंगा, एंड 3 3। सो द 3's complement of 0010 will be 3323 with this particular technique, Okay, sir. but not in your syllabus, so no need to worry about that। Okay, so I hope this slide is clear। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक और चीज ध्यान देने वाली है, मैंने अभी तक बताई नहीं है। जब भी साइंड नंबर में, अगर सपोज मैं साइंड नंबर में काम कर रहा हूँ और साइंड नंबर में मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, द लास्ट बिट इज ऑलवेज 1। ध्यान से देखो, पूरे टेबल में लास्ट बिट इज 1। इट मींस इन ए साइंड नंबर, इफ माय एमएसबी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इफ माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का डेफिनेशन कहाँ से आया, कि मेरा जो वेट्स होते हैं, जैसे 1000 को नंबर था तो उसके वेट्स क्या थे, 1 2 4 8, तो सबसे ज्यादा वेट आखिरी वाले को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमएसबी। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से दैट द फर्स्ट बिट, बिकॉज उसका वेट 1 होता है, इट इज एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो वेन एवर माई एमएसबी इज इक्वल टू 1, in case it is a signed number, it means a negative number is there। साइंड नंबर में एमएसबी 1 है तो मतलब ये मेरा नेगेटिव नंबर है।
ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल। मेरा एमएसबी 1 है, हाँ जी। Sir, if you want to say positive 15 in binary, you would say 0, 1, 1, 1 पॉजिटिव 15 in binary. इन बाइनरी Signed. साइंड, यस इट विल बी 0 1 1 1 1, यस। क्योंकि हमें वो साइन तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। अगर हमने साइंड में सिर्फ 1 1 1 1 लिख के छोड़ दिया फिर तो वो -1 समझेगा। Yes. ओके, एंड ये 5 बिट का क्यों हो गया उसके पीछे मैं अभी के अभी आपको रीजन बताता हूँ। अब देखो एक चीज है, ध्यान से देखो, सिर्फ 4 बिट का गेम है, और अगर सिर्फ 4 बिट का गेम है तो मेरे पास टोटल नंबर कितने आ सकते हैं इसमें, 16, यस और नो। अगर मेरे पास टोटल 4 बिट्स की लोकेशन Yes, है, sir. कुछ भी कर लूं, मेरे पास 16 ही नंबर आएंगे। तो इन 16 में मेरी रेंज क्या है, लुक एट दिस नंबर एंड दिस मैक्सिमम नंबर, -8 to +7। मेरा -15 इसमें आया ही नहीं है, या +15 इसमें आया ही नहीं है। तो ये रेंज के लिए मेरे को 2⁵ करना पड़ेगा, बिकॉज 2⁵ का 32 का कैपेसिटी होगा, एंड इन दैट केस आई कैन राइट मेरा जो रेंज होगा इट विल बी -16 to +15। समझ में आया क्या हो रहा है? इन साइंड Yes, sir. नंबर्स, इन साइंड नंबर्स ऐसे करके वो हाफ हो जाता है, रेंज ही कम ज्यादा हो जाती है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जैक्ट रीजन अगर मैं अब +15 को साइंड नंबर में लिखूंगा तो इट विल बी 0 1 1 1 1। जैसे 7 को हमने लिखा 7 इज 0 1 1 1, तो ऐसे ही मेरा 15 होगा 0 1 1 1 1। समझ आया जी क्या हो रहा है? ये चीज बहुत ध्यान से देख लो यार, मतलब ये रेंज वाली चीज ना अच्छा हुआ इस स्लाइड पे सर डिस्कस हो एक गई। बार आप लास्ट वाला वापस से रिपीट कर दीजिए। यस, मैं कह रहा हूं दिस इज ए साइंड नंबर टेबल, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, एंड वी हैव दिस लेंथ ऑफ 4 बिट्स। अब यहाँ पे 4 बिट्स हैं, 5 बिट तो कहीं भी नहीं है, सारे के सारे 4 बिट हैं, ठीक है जी, ऑल द बिट्स आर 4 बिट्स। तो 4 बिट्स में मैक्सिमम नंबर कितने अलाउड हैं? अगर मैं ऐसे करके 4 लोकेशन दूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2⁴ इक्वल टू 16। तो 16 तरह के नंबर अलाउड हैं, यस और नो? यस सर। And within this 16 numbers, my range of signed numbers will be -8 to +7। यहाँ पे आप गिन लो, ये टोटल 16 नंबर हैं, -8 to -1 then 0 to 7, टोटल 16 हैं, यस और नो? यस सर। दैट्स ऑल। साइंड नंबर में अगर मेरा 4 बिट है तो 4 बिट में साइंड का 4 बिट साइंड नंबर हैज ए रेंज ऑफ -8 to +7। Similarly 5 bit signed numbers have a range of -16 to +15। यही टेबल और बड़ा हो जाएगा अगर मैं 4 की बजाय 5 बिट लेने शुरू कर दूं। ये वाले टेबल में 4 की बजाय अगर 5 लोकेशंस होती तो फिर मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करता, एंड आई वुड हैव मैक्सिमम रेंज ऑफ -16 to +15, जैसे मेरा इस केस में -8 to +7 है। समझ आ गया जी? इन शॉर्ट यहाँ पे एक और मतलब निकल के आ रहा है कि मेरा -1 1 1 1 है 1 1 1 1 है if the length is 4। in case I have 5 places, तो मैं 5 places के हिसाब से सॉल्व करूंगा। तो 5 places में +1 क्या होता है, इट इज 0 0 0 0 1। इसको सॉल्व करोगे तो मेरा इसको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इट विल बी 1 1 1 1 0, +1 करेंगे तो आंसर विल बी 1 1 1 1 1। तो इसका मतलब ये भी -1 है, ये भी -1 है, ठीक है, -1 of base 10, this is base 2, but now we have 5 bits capacity। यहां से ये पता चलता है जी, इट डिपेंड्स कि हमारी लेंथ कितनी है। -1 will be converted into 1 1
in base 10, it will be base 2. मैं दोबारा से थोड़ा सा और क्लियर वे में लिखता हूँ. -1 मेरा है डेसिमल नंबर. अब डिपेंड करता है कि मेरी लेंथ कितनी है. अगर मेरी लेंथ है 2 बिट्स की, सो -1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 1. अगर मेरी लेंथ है 3 बिट्स की, -1 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 1 1. अगर मेरी लेंथ है 4 बिट्स की, -1 will be represented as 1 1 1 1, which is the case in this particular table. 5 bits की लेंथ है तो फिर still it will be 5 times 1. यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि मेरे ये नंबर ऐसे नहीं है कि ये फिक्स है, अब ये ऐसे ही आएगा. अगर मेरे 5 बिट होते तो मैं 5 बिट के हिसाब से इसको सॉल्व करता. अगर मैं 5 बिट के हिसाब से -8 का आंसर निकालूं, सपोज मुझे गिवन है कि मेरे पास 5 बिट्स की रेंज है. 5 बिट्स का रेंज मतलब -16 टू +15 की काउंटिंग है. वो -16 -15 ऐसे करके अप टू +15 का टेबल होगा. तो उस केस में मेरा -8 यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या नंबर आएगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं. इट विल बी इक्वल टू कि मैं पहले लिखूंगा 5 बिट में 8 को. 5 बिट में 8 मेरा ये होगा, उसको मैं 1s कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा. ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 1 0 1 1 1. +1 करूंगा तो 1 1 का 0 आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया और ये आ गया. तो इस केस में मेरा -8 will be equivalent to 11,000, and this 11,000 actually it is a binary number, signed binary number. तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि अगर मेरा -1 वाला 11 या 1 ट्रिपल 1 या 4 times 1 या 5 times 1 आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये 1000 वाला बस 1000 ही रहेगा 5 बिट में. हमने अभी सॉल्व करा है, 5 बिट में मेरा आंसर 11,000 आ रहा है. But this is a binary number, so this -8 will be equivalent to this 1 1 0 0 in case I have a length of 5 bits. अगर 4 बिट्स का था 1000 था, बट अगर 5 बिट्स का लेंथ है तो 11,000 हो गया. सबको क्लियर हो गया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे? Lots of time has been spent on this particular slide today. हाँ जी, should I move on? Okay. Yes, sir. Okay. So this is what we have already done. ठीक है, let's say that you are given a number. आपके पास गिवन नंबर ये है 10101. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. डेसिमल इक्विवेलेंट इसका है 1 2 4 8 16. तो 16 4 20 और 1 21. तो 21 आपके पास गिवन है जी. उसका अब हम जो ये वाला नीचे आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये -21 का निकाल लेंगे. ठीक है, हो क्या रहा है? 1 सेकेंड. -21 आएगा क्या ये? तो हमने उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला. 1s कॉम्प्लीमेंट आया मेरे पास ये, और ऐड 1 किया तो मेरा आया +1 करने पे 0 + 1 1 आ गया. 1 की एज इट इज आ गया, 0 का एज इट इज आ गया, 1 का एज इट इज आ गया और ये 0 आया. तो इसका मतलब अब ये -21 तो नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या नंबर हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि मेरा यहाँ पे 5 बिट्स यूज हो रहे हैं. अगर मैं 5 बिट्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी 5 बिट्स की जो रेंज होती है इट इज -16 टू +15. ठीक है, तो अगर मैं 5 बिट में ये शुरू कर रहा हूँ, मतलब अगर मैंने ये सपोज ये किया 10101, इसको मैंने सारा प्रोसेस किया और मेरा वो प्रोसेस करने पे आंसर आया 11010. ये 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने और यही मेरा आंसर आया है. देन दिस इज नॉट इक्वल टू -21, क्योंकि 5 बिट की गेम चल रही है. तो इसमें ये क्या नंबर होगा? कैन एनीवन टेल मी? आंसर तो 13. आंसर इस रेंज में आएगा. 11. इट इज +13. Yes, yes. Yes, sir. In this particular table of -16 to +15, this number is +13. yes or no? तो यहाँ से मैं पता चल गया कि मेरा ये वाला नंबर इज इक्विवेलेंट टू +13. 11 आ रहा है. 1011 क्या होता है? 8421. हाँ 11 है यार, 13 नहीं है.
ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे 1 ही आएगा एमएसबी में। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और फिर पॉजिटिव के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू +11। सो मूविंग अहेड, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करा गया है दैट लेट्स से यू हैव दिस, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा साइड पे करूँ। इफ यू हैव +1 तो उसका इक्विवेलेंट इज 0001, अगर -1 है तो उसका इक्विवेलेंट इज 1111। सिमिलरली 0111 है तो इट इज इक्वल टू +7। तो ऐसे करके एक डायग्राम सा बना के समझाया गया है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। मतलब ये बताया गया है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं टोटल 16, मूविंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 15 पॉजिटिव में, बट देन दिस सेम +15 विल बी इक्विवेलेंट टू -1 अगर मेरे पास साइंड नंबर होगा। दिस +15 विल बी इक्विवेलेंट टू -2 अगर मेरे पास साइंड होगा। ये अनसाइंड है बाहर वाला, और अंदर मेरा साइंड है। दैट्स द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिगर। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? बाहर वाला अनसाइंड है, अंदर वाला साइंड है। ठीक है, और यहाँ से ये चीज देखनी शुरू हो जाती है दैट -8 एंड +8 इज सेम, बट -7 is equivalent to kind of +9 according to unsigned number। अनसाइंड होता तो वो +9 होता, पर साइंड है तो वो -7 है। ये फिगर का मतलब समझ में आ गया क्या हो रहा है? यस सर। ओके, सो सर नाउ तो हमें -8 और +8 में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? डिपेंड करता है ना कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइंड है कि अनसाइंड है। गिवन होगा कि आपको साइंड के साथ काम करना है कि अनसाइंड के साथ काम करना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेल कि अगर 1000 है पर वो साइंड है तो फिर आप बोलोगे ये -8 है, पर अगर अनसाइंड है तो ये फिर +8 भी है। इट विल बी गिवन अच्छा के ओके साइंड है सर। या अनसाइंड है। ठीक है, ओके, मूविंग हेड नाउ। सो नाउ लेट्स डू दिस क्विकली, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1101 है इनटू अनसाइंड एंड साइंड, हम दोनों इसके इक्विवेलेंट देखेंगे। तो अनसाइंड का तो हमें पता ही है कि ये 1101 इज 13, ये सबको पता है। 1 2 4 8 है, आप सबको ऐड करो 13 आ जाएगा, दैट्स ऑल। बट अगर ये मेरा साइंड है तो साइंड का मतलब है कि दिस इज द नाउ आउटपुट, हम फाइनल नंबर की बात कर रहे हैं कि 1101 मेरा फाइनल जो साइंड नंबर है, इसका इक्विवेलेंट अब डेसिमल निकालना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम -3 का निकालने के लिए 0011 लिखते थे, फिर उसको वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, फिर उसमें +1 करते थे, 1101 निकाल के हम कहते थे कि ये मेरा साइंड इक्विवेलेंट है बाइनरी नंबर ऑफ ए डेसिमल नंबर। बट अब मुझे बाइनरी टू डेसिमल जाना है, पहले हम डेसिमल टू बाइनरी आ रहे थे। तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, क्लियरिंग दिस अप। सो नाउ साइंड मतलब प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं। इफ माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, मतलब ये आखिरी वाला 1 है। इट इज ए नेगेटिव नंबर, इतना तो क्लियर है। नाउ सो दिस 1101 मीन्स ए नेगेटिव नंबर, ठीक है जी, ये हमें पता है। देन फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट टू फाइंड इट्स वैल्यू विच इज 0011। अब देखो, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया, मैंने 1101 था, चलो 1101 से नहीं शुरू करते। लेट्स से मुझे बोला गया कि मुझे -3 का निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। -3 का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 3 का, 3 इज मेरा नॉर्मल नंबर 0011। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इट विल बी 1100, +1 करेंगे तो इट इज 1101। ये तो हो गया मेरा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल का बाइनरी है इक्विवेलेंट, एंड ऑल्सो इट इज -3। ठीक है, -3 है 1101। नाउ इफ यू अगेन डू द सेम प्रोसेस कि आप जो मेरा आउटपुट आया इसके ऊपर दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 1101 जो मेरा आया था विच आई न्यू इट इज इक्विवेलेंट टू -3, बट मैं इसका दोबारा से अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कैसे आएगा, इट विल बी 0010 +1, तो मेरा ये वापस पॉजिटिव नंबर दे देगा जी। समझ आया हुआ क्या है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका, आपने जैसे 0011 था, इट वाज +3 नंबर फॉर मी,
इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू -3, तो वो कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट से निकालते हैं। पहले वाला एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद सारे फ्लिप हो जाएंगे, तो 1101 आ गया, मतलब -3 इज इक्विवेलेंट टू 1101। समझ में आ रहा है? +3 is sir. equivalent to 0011, -3 is equivalent to 1101. But now if I again find 2's complement of -3, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से इन सबको फ्लिप कर दूंगा बेस्ड ऑन दैट सेम रूल, पहले वाला एज इट इज, उसके बाद बाकी सारे फ्लिप कर दो, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू अगेन +3। ये सबको समझ में आया हुआ क्या है? Yes, जो sir. जो मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के नेगेटिव निकाला था, उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो मेरे को वापस एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ से ये पता चल गया जी, पहली बात तो मुझे यहाँ से पता चला इसका MSB 1 था, तो ये नेगेटिव नंबर होगा, यस। बट देन अगर उसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मुझे 0011 आ रहा है, मतलब ये 3 है। इसका मतलब माइनस तो था ही, ऊपर से 3 है, तो मेरा फाइनल आंसर -3 आएगा। कहने का मतलब ये है, नाउ कमिंग बैक टू द टेबल, अगर मुझे, अब देखो मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि आप -1 को ये कैसे निकाल सकते हो कि ये 1101 है, बट नाउ द क्वेश्चन इज आपको उल्टा जाना है। आपको ये वाला राइट वाला नंबर गिवन है और लेफ्ट वाला बताना है, तो उसका छोटा सा एक टेक्निक है, हम टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा जो 1010 है ये -6 है, अब ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ये है। पहली बात तो ये देख के पता चल गया कि ये साइंड नंबर है, अगर तो ये एक नेगेटिव नंबर है, माइनस तो आना ही है जी। अब यहाँ पे माइनस के अंदर डब्बे में क्या आना है वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस नंबर को मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0110 विच इज इक्वल टू +6। इसका मतलब जो ये मेरा डब्बा है इसके अंदर 6 आएगा, तो मेरा जो आंसर था वो -6 है। इजी है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी क्विकली। ट्राई करते हैं दोबारा, सेम क्वेश्चन फॉर दिस। मुझे ये गिवन है कि मेरा गिवन नंबर इज दिस, एंड आई नो इट इज ए साइंड नंबर। साइंड नंबर है, बाइनरी नंबर है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है फॉर श्योर। बट देन व्हाट नेगेटिव नंबर इज इट, उसको निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है 2's कॉम्प्लीमेंट वाला। शॉर्टकट मारेंगे, पहले 2 एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि 1 मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसके बाद वाले सारे फ्लिप हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू +2। इट मीन्स -2 है ये। मतलब सिर्फ ये वाला राइट नंबर देख के भी हम पता कर सकते हैं कि इसका लेफ्ट वाला नंबर क्या है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। 2-3 एग्जांपल लेके समझा दिया गया अब तक क्विकली। किसी को भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इट राइट नाउ, आई एम गोइंग वेरी स्लो। चलिए आगे। Yes, Yes, sir. sir. ओके ये हो गया, ये स्लाइड हो जाएगी। आफ्टर दैट अब यहाँ पे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की एंट्री हो गई है। simplest thing is, let's say we talk about 4, this 4 will be equivalent to 0100 in binary, but it will be equivalent to 4 and 4 only in octal and decimal, क्योंकि octal में रेंज मेरी 0 से 7 होती है, hexadecimal में रेंज मेरी 0 to 9 and A to F, ये टोटल मिलके 16 नंबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब 4 तो उसमें है ही है दोनों में, इसलिए वो 4 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो माई डेसिमल 4 is equal to octal 4 is equal to hexadecimal 4। ठीक है जी, यहाँ पे बेस 16 आएगा। सिमिलरली नाउ इफ आई टॉक अबाउट 11, मेरा जो 11 है, 11 मेरा अगर डेसिमल में 10 है बेस, तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी इज 1011। ठीक है, 1248, तो ये 1011 है बेस 2। बट नाउ ये 13 कैसे आया यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी क्विकली, जल्दी से बताओ यार, वी हैव ओनली 4 minutes, आई हैव टू कंप्लीट दिस स्लाइड। देखो ये 1011 कैसे आया था, फटाफट बताओ। अगर मुझे 11 को डेसिमल वाले को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये 1011 कैसे आया था, जल्दी बताओ। सर 2 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, और वो हमारा आ गया था 5 1, फिर 5/2 आया था 2 1,
फिर 2/2 किया था, इट वाज 10 और आंसर था 1011। यही था, समझ में आ रहा है? नाउ इफ आई डू द सेम थिंग, अगर मेरा 11 था बट नाउ आई वांट टू गेट द नंबर इन ऑक्टल, तो इसमें डिवाइड बाय 2 की बजाय डिवाइड बाय 8 करेंगे। ठीक है, तो 11/8 क्वोशंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 3। अब 1 को करेंगे बाय 8, क्वोशंट कितना आया 0, रिमाइंडर आया 1। 0 को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, आंसर इज 13। सो 13 इज द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फॉर माय 11 डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है हुआ क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, लेट्स वेरीफाई फॉर 14 ऑल्सो। अगर 14 को करेंगे तो 14/8 करा तो मेरा आया 1 and 6। 1/8 किया 0 and 1, तो इसका मतलब 16 आएगा। वेरीफाई हो रहा है जी? Yes, sir. ओके गुड। नाउ लेट्स डू इट फॉर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बहुत बहुत आसान है, मतलब कन्वर्ट ना भी करो तो वैसे ही याद कर लो। जो मेरा 10 है, अगर मैं इसको 10/16 करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्वोशंट तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर मेरा आएगा 10। बट इसमें ना बस इतना याद रखना है कि जो भी मेरी आउटपुट आ रही है इसमें 10 मेरा ए होता है। अगर मेरा रिमाइंडर 10 आ रहा है तो मतलब ए लिखेंगे, रिमाइंडर 11 आ रहा है तो बी लिखेंगे, 12 आ रहा है तो सी लिखेंगे, सिमिलरली अप टू 15 आ रहा है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो 15 का इक्विवेलेंट इज एफ, 13 का इक्विवेलेंट इज डी, 11 का इक्विवेलेंट इज बी। तो ये समझ में आ रहा है हुआ क्या है? क्योंकि आप, डिवाइड बाय 8 क्यों किया था ऑक्टल में? क्योंकि उसका बेस 8 था। बाइनरी में डिवाइड बाय 2 क्यों किया था? क्योंकि उसका बेस 2 था। हेक्साडेसिमल में डिवाइड बाय 16 क्यों करेंगे? क्योंकि उसका बेस 16 है। ओके सर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। Yes, sir. Okay then, so we will continue from the next slide. From next lecture we have still 2 minutes, you can ask if you have any doubt, but इसमें ना एक छोटी सी और चीज मैं फटाफट बता देता हूँ। Now there is a very good thing, अगर मुझे suppose binary to octal convert करना है, let's say my binary number is 101101, तो ये मेरा binary है, इसको मैं octal में convert करना चाहता हूँ। Can anyone tell me that what will be the answer? जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। देखो एक तो लॉन्ग रूट है 101 इसको आप पहले कन्वर्ट करो बेस 10 में, फिर उसको आप कन्वर्ट करो बेस 8 में, ये हो जाएगा। बहुत आसान है, बेस 10 में करना भी आसान है। 1248 वाला मेथड लगाओगे बेस 10 आ जाएगा, उसको फिर आप डिवाइड बाय 8 कर करके रिमाइंडर इकट्ठे करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ ये है कि आप इसको 3-3 के पेयर बना दो, क्योंकि ऑक्टल की ना 3 की लिमिट होती है, 3 डिजिट की लिमिट होती है ऑक्टल की। ठीक है, इसके ऊपर बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि ये 3 वाले पेयर क्यों बना रहा हूं मैं। बट देन अगर मैंने 3-3 के पेयर बना दिए तो 101 क्या होता है? 101 इज माई 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा। तो वेरीफाई कर लेना, अगर आप 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इट विल बी इक्वल टू कितना? क्विकली एनीवन? 45। 45 को डिवाइड बाय 8 करो, 45 को डिवाइड बाय 8 करो, क्वोशंट 5, रिमाइंडर 5। ठीक है, 5/8 करो, क्वोशंट 0, रिमाइंडर 5, तो 55 ही आ रहा है। ठीक था मेरा आंसर। पता चला हुआ क्या? Yes, sir. Okay, so similarly on the same lines I can also do the conversion to hexadecimal. हेक्साडेसिमल में अगर मेरे को ऐसा नंबर आ जाए 101 हेक्साडेसिमल में हमें 4-4 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 1101, और इधर तो मेरे 4 नहीं पूरे हो रहे तो उसके बजाय 0 लगा दो। ठीक है, तो 0 अगर आप स्टार्टिंग में लोगों को फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो बस आप 4-4 को डिकोड करके एज इट इज लिख दो। 0010 क्या होता है? 2। ठीक है, 1101 क्या होता है? 13 होता है, तो 13 को हम इसमें क्या लिखते हैं? डी। 13 को हम लिखते हैं डी। ठीक है, तो आंसर मेरा 2D आएगा। आप ना अपने एंड पे इसको एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, बेस 2 है 0010 1101, बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल मुझे 4-4 के पेयर बनाने हैं,
और फिर 1101 को आप क्या बोलते हो, वैसे 13 बोलते हो, बट इक्विवेलेंट इज डी इन हेक्साडेसिमल, तो मैंने एज इट इज डी लिख दिया। और 10 था, उसके साथ 00 अपेंड करे, उनको 4 बनाया, फिर 0010 को लिख दिया कि भाई 0010 मेरा होता है 2, तो एज इट इज 2 लिख दिया, तो आंसर इज 2D। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay, I'm ending the session now. We will continue from the next slide in the next lecture. So you can revise these things. I'm ending the session now. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.